हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी, अ वेरी पॉपुलर नॉवेल बाय मुरियल स्पार्क and part of IGNOU MEG03 British novel. Subject otherwise also very important for all competitive exams. 1961 का पब्लिश हुआ नॉवेल है, बहुत ही पॉपुलर है और बहुत सारी फ्यूचर मूवीज और नॉवेल्स ने इससे इंस्पिरेशन भी लिया है। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच की रिलेशनशिप को दिखाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाए किसी भी टीचर का किसी सेट ऑफ स्टूडेंट्स पर या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पर, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, दैट हैज आल्सो बीन शोन। और नॉन कन्वेंशनल वे की टीचिंग को भी दिखाया गया है इसमें। स्टोरी को प्रेजेंट किया गया थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। Muriel Spark, born 1918-2006, very famous for her unconventional writings. The most popular work remains this only, but other works are Territorial Rights, A Far Cry from Kensington, Reality and Dreams, and The Finishing School. मिस जीन ब्रोडी की फिगर घर घर में एक जाना पहचाना सा नाम हो गई थी। A worldwide popular name and propelled this writer in the top of Scottish current writers. The book was recognized by the Time magazine as one of the top 100 English language books published between 1923 and 2005. Such a great achievement. स्टोरी की शुरुआत होती है मार्शिया ब्लेन गर्ल्स हाई स्कूल के साथ, जो कि स्कॉटलैंड में है। At Marcia Blaine School for Girls in Edinburgh, Scotland in 1930s, the story starts. याद रखिए सब कुछ और सब कुछ नोट करिए, इसी से आपके बहुत अच्छे आंसर्स फ्रेम हो जाएंगे एग्जाम्स में। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आंसर के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या यूज करना चाहिए। मिस जीन ब्रॉडी और टाइटुलर कैरेक्टर had a great impact on the lives of 6 of her students. Miss Jane Brodie has chosen 6 girls from her school to be trained under her mentorship, and this had very little to do with academics. The name given to all these girls is Brodie set, and these girls are crème de la crème. That is a French phrase which means the best out of best. Under her mentorship, these 6 girls completely stand out from the rest of the school. अलग ही नजर आती है स्कूल के बाकी बच्चों से। इन क्रेम डेला क्रीम के नाम भी जान लीजिए, सैंडी, रोज, मेरी, जेनी, मोनिका एंड यूनिस। अब जानते हैं एक लव ट्रायंगल को। मिस जेन ब्रूडी, सिंगिंग टीचर मिस्टर गॉर्डन लॉथर एंड आर्ट मास्टर मिस्टर टेडी लॉयड. Mr. Teddy Lloyd is a war veteran, one-armed, a married Catholic with 6 children. These two teachers form a love triangle with Miss Brodie, each loving her, but she at present loves Mr. Lloyd. However, Miss Brodie never overtly acts on her love for Mr. Lloyd except once to exchange a kiss with him. एक बार she exchanges a kiss with him, and that is witnessed by one of her girls, Monica. मिस ब्रॉडी का एक शॉर्ट टर्म अफेयर एक बार के लिए मिस्टर गॉर्डन लॉथर के साथ भी हो जाता है, on the grounds that she thinks a bachelor makes a more respectable lover in society at least, and she has temporarily renounced Mr. Lloyd as Mr. Lloyd is married. वापस चलते हैं और देखते हैं गर्ल्स क्या कर रही हैं। सैंडी, रोज, मेरी, जेनी, मोनिका, यूनिस. These girls maintain their identity as the Brodie set even after being spread out and promoted to the senior school. Around age 12 में इनको प्रमोट कर दिया जाता है, अलग अलग जगह पर चली जाती है, सेम स्कूल में ही, लेकिन अभी भी ब्रोडी सेट ही कहलाती हैं as she did when they were her students. Miss Brodie invites them to her home to stay in touch with them after school. Miss Brodie इन गर्ल्स के टच में अभी भी हैं और अभी भी इनसे इंटरैक्ट करती हैं और अभी भी इन गर्ल्स को ब्रॉडी सेट ही बोला जाता है। Miss Mickey, the principal, is not very fond of Miss Jane Brodie and she always tries to find out the chances to expel her. ऐसा कोई एक क्लू मिल जाए मिस ब्रॉडी के अगेंस्ट कि उनको विद प्रूफ एक्सपेल किया जा सके।
While all this interaction between the girls and Miss Jean Brodie is going on, Principal Mickey tries to separate them and utilize the evidence she gathers to justify firing Miss Brodie. Miss Mackey has repeatedly advised Miss Brodie to apply for a position at a progressive school. प्रोग्रेसिव स्कूल बड़ा एक नया नया टर्म हुआ करता था उस टाइम पर, जिसमें स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के अलावा और बहुत सारे एरियाज में ट्रेन किया जाता था। एकेडमिक्स के अलावा क्रिएटिव होना, एक्सप्रेसिव होना और बाकी सब पर्सनल स्किल्स डेवलप करना सिखाया जाता था। तो मिस मैकी जब देखती है ना कि मिस ब्रोडी गर्ल्स के साथ बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव है, आफ्टर स्कूल भी उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, शी डज नॉट लाइक ऑल दिस, शी इज वेरी कन्वेंशनल एंड शी वांट्स कि मिस ब्रोडी या तो स्कूल को खुद ही छोड़ दें या फिर मुझे कोई चांस मिल जाए उनको एक्सपेल करने का। There were two sisters who were teachers in the school, and they leave their job and they start working at the place of Mr. Teddy Lloyd as their housekeeper. Miss Jane Brody को पसंद नहीं आता and she every now and then she starts taking over the responsibilities of the care sisters at the house of Mr. Lloyd. Now it is time for the girl to be 16 और मिस जीन ब्रोडी इस सेट में सबसे ज्यादा ट्रस्ट सैंडी पर करती हैं कि इस ग्रुप में जो कुछ भी चल रहा है, आसपास स्कूल में जो कुछ भी चल रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी बातें, कोई भी गॉसिप, सैंडी इज द वन हु विल ऑलवेज टेल मी। शी ट्रस्ट्स सैंडी द मोस्ट। और गर्ल्स अब 16 की हो गई हैं तो मिस जीन ब्रोडी चाहती है कि दे शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ लव लाइफ एंड सेक्सुअल लाइफ एज वेल, और बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल की ट्रेनिंग देना चाहती हैं अपनी गर्ल्स को। एंड शी वांट्स नाउ that Rose, who is the most attractive member of the Brody group, should seduce Mr. Lloyd in her place now. Now comes another character, Miss Locker, the science teacher. She begins to neglect Mr. Lothar, who then marries Miss Locker, the science teacher. मिस्टर गॉर्डन लॉथर जो कि उनके एक लवर हुआ करते थे वंस अपॉन अ टाइम, ही गेट्स मैरिड टू द साइंस टीचर मिस लॉकर्ड, और इसके बाद से ही जेन ब्रोडी मिस्टर लॉथर को इग्नोर करना शुरू कर देती। नाउ एंटर्स वन मोर कैरेक्टर, जॉयस एमिली। शी इज अ स्टूडेंट। Joyce Emily is a different student, momentarily enters the scene and makes an unsuccessful attempt to join the Brody group. ये भी ब्रोडी ग्रुप का पार्ट बनना चाहती है। Separately, Miss Brody takes her under her wing and pushing her to flee and join the nationalist side of Spanish Civil War. मिस ब्रॉडी इन 6 ग्रुप में तो इनको एंट्री नहीं देती है, लेकिन अलग से इनको ट्रेन करना शुरू करती है और इनको कहती है कि यू शुड टेक पार्ट इन स्पेनिश सिविल वॉर। बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर देती है अपने स्पेनिश सिविल वॉर से रिलेटेड नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट्स को, दैट दिस गर्ल फ्लीज but is fatally injured when the train she is riding on is attacked. This girl flees, Joyce Emily flees to take part in Spanish Civil War, but she is fatally injured in a train. Now the girls are around 17, the original Brody group, who are now 17 and in their last year of school start to ड्रिफ्ट अपार्ट, एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देते हैं। ऑफ कोर्स उनको मूव ऑन होना है अपने अपने करियर बनाने के लिए। बिफोर टेकिंग देयर एग्जाम्स, मेरी और जेनी डिपार्ट करते हैं सबसे पहले, मेरी टू वर्क एज अ टाइपिस्ट एंड जेनी टू परस्यू एन एक्टिंग करियर। Both Eunice and Monica, they pursue their career as scientists. Rose marries a very charming man, and Sandy, who has a strong interest in psychology, finds Mr. Lloyd's obstinate love, his painter's mind, and his religion to be very fascinating. सैंडी को मिस्टर लॉयड का दिमाग, उनका पेंटर वाला दिमाग, उनका रिलीजन और उनके बारे में सब कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग लगने लगता है। सभी गर्ल्स 18 की हो चुकी हैं लगभग, सैंडी एंड रोज स्पेसिफिकली इनका रोल है अब। सैंडी एंड रोज बोथ नाउ 18 years old, keep visiting Mr. Lloyd at his residence to pose for him during this time. He was a painter as well, उनके लिए पोज किया करती थी गर्ल्स। One day
While Mr. Lloyd's wife and kids are away, Sandy starts a love affair with him, taking over Rose's position. मिस जीन ब्रॉडी हमेशा एक्सपेक्ट करती थी कि रोज विल बी द लवर ऑफ टेडी लॉयड बट सैंडी बिकम्स हिज लवर. अभी तो मिस्टर लॉयड की वाइफ और फैमिली बाहर थे. जब वो वापस आ जाते हैं, स्टिल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दीज टू कंटिन्यू देयर रिलेशनशिप. एटलीस्ट 5 वीक और चलती है उनकी ये रिलेशनशिप. But by the end of the year, Sandy grows bored with Mr. Lloyd as a person and becomes increasingly preoccupied with his creative mind. तो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग तो वो उनसे बहुत बोर हो जाते हैं, लेकिन इनका क्रिएटिव माइंड, आर्टिस्टिक माइंड अभी भी सैंडी को बहुत अट्रैक्ट करता है. 17-18 के होने के बाद दिखाया गया कि सैंडी एक ऐसी गर्ल में कन्वर्ट हो चुकी है जो बहुत ही जल्दी किसी से भी बोर हो जाती है. Earlier years, she was a part of Miss Brodie's set, but now she comes to Miss McKay, the principal, and says she is in putting a stop to Miss Brodie. अब वो इस ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहती और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स थे मिस जीन ब्रॉडी के, वो सब मिस मैके को बता देती है. एंड मिस मैके को एक बहुत ही अच्छा प्रूफ मिल जाता है मिस ब्रॉडी को फायर करने का, बिकॉज ऑफ हर पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स. मिस मैके ऑल्सो कम्स टू नो कि जॉयस एमिली के एस्केप में और उनके एक्सीडेंट के पीछे भी मिस जेन ब्रॉडी का ही हाथ था, एंड शी गेट्स अ ग्रेट चांस टू फायर हर. तो इनको रिटायरमेंट के लिए मिस मैके मिस जेन ब्रॉडी को रिटायरमेंट के लिए फोर्स कर देती हैं कंप्लीटली. एंड लुक एट द आयरनी, सबसे ज्यादा ट्रस्ट मिस जेन ब्रॉडी ने सैंडी पर किया था, एंड सैंडी इज द वन हु बिट्रेड हर. So she is then fired and she suspects that it was Mary who betrayed her, even though it was Sandy. Miss Brodie dies of cancer in 1946, in the second year of the Second World War. When she is on the verge of death, Miss Brodie is able to admit that Sandy, her closest and most favorite student, Sandy was the one who had betrayed her. Later on, we see after the passing away of Miss Jean Brodie, Sandy converts to Roman Catholicism and becomes a nun known as Sister Helena. And this is the phrase that she says: betraying loyalty where loyalty is due is the only option. अगर किसी की लॉयल्टी ड्यू है तो वहां पर बीट्रे करना ही सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन होता है. One day, a young man tries to interview Sandy and visits her and asks her some question because of her recent strange book on psychology. He inquires about the main influences of her in school years, asking her were they literary or political or personal. आपके स्कूल टाइम के आपके इन्फ्लुएंसेस कैसे थे, लिटरेरी, पॉलिटिकल और पर्सनल. एंड Sandy answers him by saying there was a Miss Jane Brodie in her prime. Her answer is very surprising given the nature of her betrayal, but जब वो अपने आप को ऑब्जर्व करती हैं या फिर कोई और जब उनका ऑब्जर्वेशन करता है, तब वो ये पाती हैं कि Miss Brodie's influence on her actually was for lifetime and was very formative. इस नॉवेल की थीम में बिल्डिंग्स, रोमन एजुकेशन और इंट्रूजन, ये सब कुछ मिला जुला है. बिल्डिंग्स रोमन इज ए नॉवेल ऑफ फॉर्मेशन जिसमें हमें इनिशियल ईयर्स दिखाए जाते हैं किसी की लाइफ के और किस तरीके से स्पिरिचुअल और एकेडमिक एजुकेशन उस पर्सन को मिली है और एक फॉर्मेशन हुआ है उसकी पर्सनालिटी का. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ वेरी गुड एग्जांपल बाय चार्ल्स डिकेंस. Prime of Miss Jean Brodie is also Buildings Roman, that is a novel that has one of its theme as the formative years or spiritual education of a person. In developing this theme, the novel dramatizes also the distinction between education and intrusion. मिस जेन ब्रोडी खुद ही इन दोनों वर्ड्स को डिफाइन करती है और कहती है कि एजुकेशन का मतलब है एक स्टूडेंट की सोल को फ्लरिश करना, जबकि इंट्रूजन का मतलब है उसमें कुछ नया प्लांट करना जो कि कभी वहां था ही नहीं. एंड शी क्लेम्स दैट आई एम एन एजुकेटर और मिस मैके जो कि प्रिंसिपल थी वो एक इंट्रूडर हैं. वो बच्चों में, सब बच्चों में एक जैसे कुछ ट्रेंड्स डालना चाहती हैं जो कि सोसाइटी में एट प्रेजेंट पॉपुलर हैं.
राइट। लेकिन अपने आप को कहती है कि मैं बच्चों को उस हिसाब से डेवलप करना चाहती हूँ जो कि उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड इंट्रूजन इज। एंड मेनी टाइम्स हमारी पूरी सोसाइटी बच्चों की लाइफ में इंट्रूजन करती है रादर देन गिविंग देम एजुकेशन। वीडियो के एंड में आप सबके लिए एक सवाल, who did Miss Brodie encourage to go to Spain to fight? Please provide me this answer in comments. I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks for watching. Best of luck for exams and please provide your valuable feedback in the form of comments.